अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर हम पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आज शुमाइला हु शी हैड स्पेंड हर वेकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन, आज सेड टू शुमाइला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, माय फादर आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही हैड फाउंड द गर्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर डिड यू फाइंड द गर्ल, माय फ्रेंड सेड माय फादर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आई प्रपोज दैट वी शुड गो टू वॉच द मैच। इसका आंसर हो जाएगा आई सेड लेट्स गो टू वॉच द मैच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही ऑर्डर टू कम द नेक्स्ट डे इन द इवनिंग। इसका आंसर हो जाएगी सेड कम टुमारो इन द इवनिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्टेड माई डॉटर टू गिव सम मिल्क एंड अ पीस ऑफ केक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीज गिव मी सम मिल्क एंड अ पीस ऑफ केक, आई सेड टू माई डॉटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, he admitted that he had a man staying with him but he did not know whether he was my missing friend। तो इसका आंसर हो जाएगा he said yes, I have a man staying with me but I do not know whether he is your missing friend, option B। Next day, the stranger said quietly that he was an ill-mannered giant and he would probably have to teach him a little civility before they part। तो इसका आंसर हो जाएगा the stranger said quietly you are an ill-mannered giant and I will probably have to teach you a little civility before we part, option A। Next है हमारे पास, the girl said to the artist that she would be sitting for her second portrait and then asked whether it would be larger than the other। इसका आंसर हो जाएगा the I will be sitting. I'll be sitting for my second portrait, and will it be larger than the other? The girl said to the artist, option. Next, the Avian pygmy said to Arcturus very boldly that he was his enemy. He had slain the enormous Antaeus. Their brother are the faithful friend of their nation। इसका हो जाएगा I am your enemy. You have slain enormous Antaeus, our brother and the faithful friend of our nation, said the winning pygmy to Arcturus, option D। Next, here Jeff replied Peterson that if they had had any powder, that indeed might have been useful। इसका आंसर हो जाएगा if we had any powder that indeed might have been useful, said Jack Peterson, option B। नेक्स्ट है हमारे पास, Newton said he saw himself a child playing on the seashore and picking up a curious shell or pretty pebbles while the boundless onset of truth lies the undiscovered before him। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक न्यूटन सेड आई सी माई सेल्फ अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द सीशोर एंड पिकिंग अप क्यूरियस शेल well or pretty pebbles while the boundless ocean of truth lies before me, FCC। Next है हमारे पास, the man addressed his mother humbly and said that whatever she did, she would always be there to him, but he had a right to choose what was best for him। तो इसका आंसर हो जाएगा mother, whatever you do, you will always be there to me, but I have a right to choose what is best for me, said the man to his mother, option C। Next है Peter said that a blazing fire would give enough light, but it would also give a great deal more here than in the hot warm climate of there। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास Peter said a blazing fire will give enough light, but it will also give a great deal more heat than in this warm climate of ours, option B। Next है Hawkins replied that in fact he believed he had the thing in his pocket to tell me the truth. He would like to get it kept in safely। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास Hawkins said in fact I believe I have the thing in my pocket to tell you the truth. I would like to get it kept in safety, option D। नेक्स्ट है हमारे पास Portia warned Antonio that he had to prepare his costume for the knife and asked whether he had anything to say। तो इसका आंसर हो जाएगा यू मस्ट प्रिपेयर योर पर्सन फॉर द नाइफ, डू यू हैव एनीथिंग टू से, सेड पोटेटो एंड टू ऑप्शन बी। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनविरो वायरस। तो क्या चीज रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी के दे आर टॉलरेंट टू अनदर एंटीबॉडीज। नेक्स्ट पोलियोवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलियोवायरस, किसकी एग्जांपल है, स्फेरिकल वायरस के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्फेरिकल वायरस की एग्जांपल है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस।
DNA वायरस है herpes वायरस, ऑप्शन सी। ऐसे which is called a naked virus, नॉन एन्वलप वायरस को naked वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है the bacteriophage replicates inside bacteria, obviously bacteriophage. What does the term bacteriophage refer to? इसका आंसर हो जाएगा ओरल ड्रॉप के फॉर्म में लिया जाता है। सॉरी, विच डज द टर्म बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज किसको रेफर करता है? वो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है पोलियो वायरस इज गिवन बाय ओरल ड्रॉप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्राइन जो ऑप्शन बी, प्राइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच इज नॉट अ वायरल डिजीज। क्या चीज वायरल डिजीज नहीं है? मलेरिया वायरल डिजीज नहीं है। जैसे द डिजीज हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ, किसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है? लिवर के अंदर। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑन ई ओ एफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा मीजल और मम्प्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट है रेबीज इज कॉज, रेबीज किसकी वजह से होता है? रेबीज होता है रैबिड वायरस की वजह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग सेल डज एचआईवी मेनली इन्फेक्ट। एचआईवी की हेल्पर लिम्फोसाइट में इन्फेक्ट करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिस एड कौन कराता है? वायरस कराता है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ अपॉर्चुनिटिक डिजीज रिलेटेड टू एचआईवी वायरस। एचआईवी जो होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, ऑप्शन ए। द मेन टारगेट ऑफ एचआईवी एड का क्या होता है? वो होती है हेल्पर टी सेल, ऑप्शन बी। इसको करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरस अपॉर्चुनिटिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एड्स जो होता है वो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। वायरस के बारे में क्या है? तो वो एड्स की वजह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज ऑप्शन सी। द एंजाइम इंटीग्रेट प्रोटीएस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आर फाउंड इन विच वायरस। तो वो मौजूद होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ह्यूमन immunodeficiency virus HIV particles are surrounded with a coat known as the virus envelope of membrane made up of, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। तो HIV। देखो नेक्स्ट है इन एड्स डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है वायरस इज लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है पॉइजन। नेक्स्ट है सीलिया फ्लैजेला का एब्सेंट होते हैं, तो वो वायरस का एब्सेंट होते हैं। अब जो हम फिजिक्स के क्वेश्चन तो करेंगे। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ हेवी कॉइन फॉल ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स द ग्राउंड नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाई इज दैट सो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वेट ऑफ कॉइन इज मोर देन एयर रेजिस्टेंस, इसीलिए वो गिर रहा है, ऑप्शन डी। वजन ज्यादा है कॉइन का। नेक्स्ट है टू बॉल्स कोलाइड ईच अदर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट कोलाइड्स इलास्टिकली स्टेटमेंट एडवोकेट्स द ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन है वो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन के बराबर है। नेक्स्ट है एट व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेंजेस आर इक्वल, किस रेंज पे इक्वल होती है? तो वो 20 डिग्री और 60 डिग्री पर इक्वल होती है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू कार्स ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा क्योंकि हम 70 पे ऐड कर देंगे 70 से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
Next है two bodies having some mass undergo elastic collision, then their velocity after collision will be. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? v1 0 के बराबर, v2 v1 के बराबर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रीजन इज 46 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी। जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो नेगेटिव के बराबर है। नेक्स्ट है एट हाईएस्ट पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा वी एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और वी वाई 0 के बराबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। Next, a body covered displacement of 10 meter towards north and then return back to initial point by covering 10 meter towards south. Its total displacement was. इसका आंसर क्या हो जाएगा पास? 0 मीटर, 0 मीटर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या सेटिस्फाई करती है? वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च इस वेलोसिटी मैक्सिमम 8। तो इसका आंसर मैक्सिमम का एट किस टाइम पे मैक्सिमम होगी? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टर पर मैक्सिमम होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम लेस बिग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जब पास करेगी ओरिजिन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास a projectile thrown an angle of 45 with horizontal and its range is r1. Another projectile is thrown at an angle of 44 with vertical and its range is r2. The relation between e1 and r2 is. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास r1 इक्वल हो जाएगा r2 की, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल पाथ में एयर फ्रिक्शन क्या अफेक्ट करती है? तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अफेक्ट करती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायरेक्शन ऑर्बिट्स। किसके पास सेम डायरेक्शन होता है? तो फोर्स और एक्सीलरेशन के पास सेम डायरेक्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करती है? वो एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर में क्या है वो एक्सप्लेन करती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग टॉप 80 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड इन हाउ मच टाइम विल इट टच द ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इफ टू इक्वल मासेस आर इन मोशन विद सेम इंडिविजुअल स्पीड वी कैन कंक्लूड। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? उनका मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड फॉल फ्रीली इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो v इज इक्वल टू जी टी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है a bullet is fired horizontally with 20 meter per second in the absence of air friction its horizontal velocity after 2 second will be। इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अ बॉक्स ऑफ मास m इज इक्वल टू 6 kg के बराबर हो जाएगा, जो कि स्लाइड हो रहा है, और स्पीड v के बराबर हो जाएगी जो कि 4 मीटर पर सेकंड के बराबर है अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस। तो इट सडनली एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, वन पीस विद मास m1 इसके बराबर होता है 2 kg के, और जो है सेम डायरेक्शन स्पीड यानी कि v1 इसके बराबर 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया 2 को मल्टीप्लाई करा 8 से, उसके ऐड कर दिया 4xy v स्क्वायर, तो आंसर मेरे पास आ गया 24, और 16 के अंदर प्लस किया 4 v स्क्वायर, तो आंसर 24 हो गया, ऑप्शन बी। जैसे हेलीकॉप्टर वेट w is extended with zero relaxation the upward force on it। अपवर्ड फोर्स के पर क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू W के बराबर। अब जो है हम
केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। If we know the mass of one substance, we can calculate the volume of the other substance and vice versa with the help of chemical equation is called. वो मास रिलेशनशिप के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies a volume of क्या ऑक्यूपाई करता है 22.414 gm3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। वो टू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इसमें से 23 एटम से ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। Next, an organic compound has empirical formula C3H3O. If molar mass of the compound is 10.15 molecular formula of this organic compound is. तो इसका आंसर हो जाएगा C6H6O ऑप्शन ए। Next है when 8 grams of hydrogen react with 2 moles of oxygen, how many moles of water will be formed? इसका आंसर हो जाएगा 4 मोल भरेंगे हाइड्रोजन के अंदर 1/2 ऑक्सीजन डालेंगे तो 4 मोल्स हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं। ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन बर्न इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्या देगी 2HCl। तो ये क्या कहलाएगी तो ये 2:35.5 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉलीमर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2 हैज मोलर मास ऑफ 28,000 ग्राम मोल इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑफ आइसिस। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 एस्पेशल 22 वही बराबर मॉलिक्यूल्स के नंबर कम या बढ़ते नहीं है। हाँ नेक्स्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 4.3 - C ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन इट मोलारिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके अंदर होंगे 0.1 gm³ के अंदर तो 0.055 मोल पर 0.1 लीटर के बराबर का ऑप्शन ए। नेक्स्ट एन ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू वाटर वेपर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा CH3O के बराबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। इसका आंसर हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट है हमारे पास a researcher had prepared a sample 1 bromopropane from 10 gram of 1 propanol. After purification, he had made 12 gram of product. Which of the following is percentage yield? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास theoretical yield 10 ग्राम का हम 10 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट से। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास अब एक्चुअल yield हमारे पास आ जाएगी 60%। ऐसे which one of the following has same number of molecules present in 11 gram of carbon dioxide? इसका आंसर हो जाएगा 4.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेट वाटर ऑप्शन सी। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद वन मोल ऑफ सब्सटेंस। इसका आंसर हो जाएगा 6.0 एक्सपोनेंशियल 20 ऑप्शन है। नेक्स्ट डिटरमिनेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपेंशन 6 ग्राम ऑफ NaCO2। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मोल्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट कैलकुलेट द ग्राम ऑफ H2 फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा 21 ग्राम। CH4 के अंदर हम ऐड करेंगे टू ऑक्सीजन को और मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। While founding the relative atomic mass which of the following is standard is used to compare the atomic mass of fluorine। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12 ऑप्शन बी। Next is the formula which shows the simplest whole number ratio of the atom of different element in compound। इसका आंसर हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑप्शन बी। Next is 3.0 molecules of calcium which contain dash gram of calcium। इसका आंसर हो जाएगा 104 grams 105 ग्राम। यानी कि 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40 ऑप्शन ए। Next है the average atomic mass of boron is 10.8. It has two isotopes of mass 10 and 11 respective. What is the percentage of isotope with the average mass of 10? इसका आंसर हो जाएगा 10.8 तो हम 10s के अंदर ऐड कर दें 11 को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 के बराबर होगा, ऑप्शन बी। Next, a piece of diamond embedded in a gold ring weight 6.0 gram. How many number of moles of carbon does it contain? 0.5 moles carbon इसके नंबर दी देंगे. Next, iron is manufactured industrially in blast furnace using thermite and reducing agent carbon monoxide Fe2O3 or 3CO. क्या बनेगा? 2Fe और 3CO2. और calculate the mass of iron ore used to manufacture 56 gram of iron with excess carbon monoxide. Assume that the process gives 100% yield. तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3. Next, how many calcium carbonates are present in 125 kg of calcium carbonate? आंसर हो जाएगा मेरे पास 17.5 मोल.